खड़े में बह जाओ, जिन्हें सोना बह के सुनो। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਮੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਸ ਖਾਓ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੋ ਵੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮਾਸ ਖਾਓ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮਾंस की जांच एक है पहचान दो, मैं लिख दी पा दी। तो संत से पूर्णिमा तुर्क पर थोड़े दिवसीय सी जो संत ने चिट्ठी पूरी ना लिखा ना, संत कहना पहले चिट्ठी कि लिखे हंकार बड़ा सी विद्वान ने पंडित ने कहना मेरी लिखी है, सच मेरे कोल आया साढ़े कोल बुला के कहन लगे जोड़ा कुछ चिट्ठी च लिखा तो हाँ, कहना हाँ जी संत की संकट जितने समय खराब बनी सी संत कहने तेरी शादी हुई है, कहते जी हुई है, कोई लड़की हैगी जवान, कहते जी हैगी है। संत कहते कोई भैन है, कहना भैन भी हैगी है। संत कहते विआही तो नहीं, कहते नहीं। संत कहते जिस वर्ताव घर वाली ने वरतना उस वर्ताव भैन ते धी ने वरतदा। लम्मा पै गया पैरों से, कहने लगा जो मेरे वर्गा भूखम रूप में किसी ने प्रश्न करना तो वर्गा भूखम रूप में किसी ने उत्तर नहीं देना। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਭੈਣ ਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਪੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਰਸ ਮਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਰਹੇਗਾ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਟੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੇਗੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਧ ਕਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਸੜ ਗਿਆ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਆਨੰਦ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਖਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਗੇ।
भावें दास का पढ़िया लिखिया जोड़न का फर्ज तो नहीं बनता, पर पढ़िया लिखिया के हुक्म मन करके संगत के जोड़े झाड़न की कोशिश करांगा कि अखर बोलदा हाँ अनपढ़ता के कारण वध घट निकल जाए चिट्ठियां बख्शनी। गल चली इस आनंदपुर के मते दे। आनंदपुर का मता जो है वो 3 प्रकार का बन चुके है, जिहदे विच ब्रह्मा विष्णु के शिव जी को घोषणा करते हैं। तो 3 गुण हैं, रजो तमो ते सतो गुण। 3 अवस्था जागृत सुखम ते सुखोत ते 3 अवस्था हैं मुर्दियां बालक जवानी ते बिरध। पर इन्होंने सारियां नूं मिल गोदा जिहा कर दिता उन्होंने। एक तो भाई साहब ने नाम लेके तुम दस दिता है कि भारद्वाज का फार्मूला, एक बलवीर सिंह बराड़ ने बनाया, एक अकाली दल वालों है। शायद हो सकता जिन्हें सदनों में कापियां पढ़िया ने तो माड़ा मोटा पता होगा। बहुत मत संगत में तो ये नहीं पता भी कापियां हाईकोर्ट में पढ़िया एक लिहाई जिम्मेवार की जिस तरह भाई ने कहा ठीक है ये अर्थकथनी नहीं। और मैं बेनती करांगा पहले सरकार के पक्ष तो वो अपने में की कर रही है, बाकी जो अपने घर वो बारे भी मैं जरूर 2-4 बेनतियां करांगा समय समय नाल। सारा तो पहला तो आपको पिंडों में जाके हर एक माई भाई नूं, हर एक बच्चे नूं, नौजवान बजुर्ग नूं ये एहसास करवाना चाहिए कि आप हिंदुस्तान च गुलाम हो। जब मनुख को एहसास हो जाए, यकीन हो जाए कि मैं गुलामी के दिन कट रहा है तो मैं ये गुलामी अपने घरों दूर करनी है, उस वेले मनुख कोई रास्ता अख्तियार कर सकता है। तो जब अखा मीट के बैठा रहे तो किसी रास्ते से चल के अपना पंध नहीं मडेर सकता। ये गल का एहसास करवाने वास्ते कुछ जरूरी चीज़ां दसणियां पिंडां विच योग होणगीआं कि सरकार अपने में पता की कर रही कि आप गुलाम किवें हैं ते ये गुलामी का कारण की है। माफ करो, गुस्सा न करियो। गुलामी का कारण मुढ़ली अपनी नलायकी लीडरां दी। सन 47 वे पट्ठा बिठाया उस मौके के लीडरां ने ਇਹਦਾ ਅਵਦਾਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि अभी पता नहीं कितना चुकाना पड़े। सरकार जो कुछ कर रही है हिंदू साम्राज ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੁੱਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ कुल हिंदुस्तान का हिंदू एक प्लेटफार्म पर खड़ा है। वही बोली चौकीदार बोल रहा है हिंदुओं विचों ते वही बोली प्रधानमंत्री बोल रही है। ये कई उदाहरण हैं। जे तो सिख किसी स्टेज पर तकरीर कर दे तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो सकता है, पर जो हिंदू कोई बोले तो उसके विरुद्ध मुकदमा ने उसमें बधाइयां मिलदियां। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वर्तमान समय की जे किसी स्टेज से खड़ो के बोलती है कि मैं पंजाब के सिखों को कहती हाँ कि सोच लवो बाहर स्टेटों में बैठे सिखों का की बनेगा, ये धमकी है। ये तो मुकदमा कोई दर्ज नहीं। जे इसे जवाब पिंडरां वाला इतों अमृतसर से कह रहे कि बीबी जे तेरी ये रुचि है तो गिनती असं भी करी बैठे, सानू 20 भी आते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। जे भ्रष्टाचार या पार्लीमेंट में बयान दे रहे जो कि हिंदुस्तान के कानून मुताबिक, विधान मुताबिक यह है कि पार्लीमेंट में बयान उस मनुख के विरुद्ध दिता जा सकता जो मनुख हाजिर हो गए, जोड़ा को जवाब दे सके। जोड़ा हाजिर नहीं ये विरुद्ध पार्लीमेंट में बोलने का किसी को कोई अधिकार नहीं। लाले जगत नारायण का केस चल रहा है लुधियाने तो भ्रष्टाचारिया बैठा दिल्ली
वो पार्लीमेंट में बैठा हुआ कह रहा है कि नक्षत्र सब ने फांसी लगनी चाहिए है, पर ਉਹਦੇ विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं। स्वामी आदित्य वेश हरियाणे ਤੋਂ रहने वाला हिंदू बरादरी नाल संबंध रखने वाला ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ कि हरियाणा के सिख सारे अपना कशहरा परना चुको सब पंजाब में निकल जाओ। ਉਹਦੇ विरुद्ध भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं, ना कोई टैरोरेशन किया, कोई ਉਹਦੇ तशद्दुद नहीं। हिंदू जै संघ समिति बनी, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ राजस्थान के 5 दिसंबर तक सारे सिख इत्थे राजस्थान से चले जाए, नहीं तो गंभीर छिट्टे निकलणगे। दिल्ली शासन चलता सी उस वेले किसी ने नुकताचीनी नहीं की, कोई आवाज नहीं उठाई, किसी ने निखेधी नहीं की। 3 दिन दास चुप रहे कि तेरे कोई लीडर होर बोल पड़ेगा, सारे ने कन्ने चूमले बुझे दे ले। तो तीजे दिन पिछले अखबार वाले इकट्ठे करके दास ने एक बयान दे दिता कि जो हिंदू जय संघ की रुचि है कि राजस्थान के सिखा ने इसे कढ़ना, तो मैं पंजाब के हिंदुओं को वार्निंग देनी चाहना कि तुम प्रलोक की तैयारी कर लो। मैं भी बयान दिता तो उन्हें भी बयान दिता, उन्हें पहला बयान दिता, मैं उत्तर में बयान दिता। मैं स्टेज से बोलता तो अग लगती है पार्लीमेंट में, तो जो हिंदू स्टेज से बोलता तो कभी शांति वरतती है। बयान उन्हें भी यही है। उसका कारण की है कि हिंदुओं के घरे जाने हैं, आप सिखा के घरे जाते हैं, ये दबाव की कूटनीति है। रह चुका वित्त मंत्री केवल कृष्ण, ऐसे गाने लाया जो कोहा भाई से, रह चुका वित्त मंत्री केवल कृष्ण, उन्हें अज तो 7-8 महीने पहला एक खबर दी थी अकाली पत्रिका कि समूह सिख संप्रदायां को खत्म कर दिता जाएगा। ਉਹਦੇ ਤੇ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। इस शहर के रहने वाला हरबंस लाल खन्ना उन्हें बयान दिते, उन्हें कहा है कि जुत्ती टिक्की खाई नहीं देनी, सिर पे पगड़ी रह नहीं देनी, कच करा कृपान इन भेजो पाकिस्तान। ਉਹਦੇ ਤੇ कोई मुकदमा दर्ज नहीं क्योंकि हिंदुओं ने घरे जमे है। लाला जगत नारायण जो गड्डी चढ़ चुके हैं, प्रलोक में चलिया गया है। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह बारे ने अपने अखबारों में लिखा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी शाहजादों की तरह जीवन व्यतीत करने वाले सन, बड़े शौकीन सन, कोई मुकदमा उससे दर्ज नहीं। सचखंड वासी श्री अकाल तख्त साहब के रह चुके जथेदार जानी गुरदयाल सिंह जी अजनोहा ये देश के गदार हैं, उन्होंने बाहर का पास कैंसल किया जाए। ये लाले के बयान लाला जगत नारायण के, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। वर्तमान समय में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान गुरचंद सिंह जी टौरा ये देश के गदार है, इन्होंने पास बाहर का कैंसल किया जाए। ये लाले के अखबारों में बयान है, उससे कोई मुकदमा दर्ज नहीं। 500 बंदूक धरिंदर ब्रह्मचारी को फड़ी गई, उन्हें कोई सजा नहीं, जो तरीक भुगतना तो जहाज से आ सकता है, कोई तशद्दुद नहीं, कोई कुछ पड़ताल नहीं बहुती। 1000 टन चर्बी, बठिंडे वाले तुम खास करके सुनो, ਤੁਹਾਡੇ इलाके की गल है। 1000 टन चर्बी 3 हिंदुओं ने घरों फड़ी गई फार्मां विचों, ते घरे बैठे दीयां जमानतां हो गईयां। 230 ग्रनेड पवन कुमार के गोदाम विचों फड़े गए। 1.5 साल 1.5 साल तो पहले क्या कुछ नहीं, तो जो हुण फड़िया तो 14 तरीक से लैके तो जो कुछ हरियाणे च वापरिया तो पवन कुमार के कारण वापरिया। उन्हें सजा की मिली है पवन कुमार ने? पहला जिले पटियाले का हिंदू सुरक्षा समिति का प्रधान सी, जब 230 ग्रनेड को फड़े गए तो उन्हें सजा ये दे दी कि पंजाब की हिंदू सुरक्षा समिति का प्रधान बना दिता, क्योंकि बामण में कर जमया। ये सारा कुछ है हिंदू सुरक्षा समिति है, हिंदू संगठन समिति है, हिंदू जय संघ समिति है, हिंदू शिवसेना समिति है। बाकी जड़िया गलों में हिंदुओं संबंध पर बच चुके हैं। ये सारा कुछ ही करने वाले हिंदुओं को हिंदुस्तान के एक भी हिंदू ने करे क्या कि साडा उन्होंने कोई संबंध नहीं।
ना जय संगति बारे, हिंदू जय संघ बारे, ना शिव सेना बारे, ना सुरक्षा समिति बारे, ना सुरक्षण समिति बारे, बंदूकों वाले, ग्रेनेडा वाले, चरबी वाले, तंबाकू सुटन वाले, ते जितने हिंदू गाला कढ़ने वाले सिखां नूं कदे हिंदुस्तान दे एक भी हिंदू ने कदे क्या कि इन्होंने साडा कोई संबंध नहीं। एक खबर दसो किसी अखबार से, और लीडर साहब इतने बैठे हैं, ये भी ध्यान से गल जरूर रखन। की कीता 14 तारीख नूं एक मामूली बंदे पवन कुमार के फड़े जाण तो हिंदू सुरक्षा समिति वाले ने हटाया शुरू की 24 स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब खालसा जी। दुखी हृदय ने कहना पैंदा है, गुरु कृपा करे संगत को समर्थ बख्शे, तेरा बदला संगत चुकावेगी जरूर। 24 स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पानीपत साड़े, पानीपत के संग इत्थे आए हैं, आउणगे हुण थोड़े चिर तक उधर गए हुए हैं। 6 गुरुद्वारे साड़ दिते हैं, 125 सिंहों ने केस मुल के 50 च भेज दिते हैं। ट्रक साड़े है, 2 कारां साड़ियां, 2 मुंडे छोटे मारे है, 12 सिंहों को वध सिंहों ने पानी च डबो के मारा। पानीपत के करनाल के संग विच सैकड़े दुकानां सिखां दीआं साड़ दित्तियां। ते ओहदे बारे हिंदुआं ने की किया, राजीव गांधी इंदिरा का मुंडा, ਉਹਨੇ सारे अखबारों से खबर छपियां कि धन्यवाद किया हिंदुओं का ने, हिंदुओं ने बड़े सबर तो काम लिया। इन्नी बेअदबी की सिखां की, एक लड़की सिखां की मंगे करके 2 घंटे GT रोड पर खड़ी रखी, तेरे कोल ढोल बजा के भंगड़ा पाया। वो सिंह दर्शन में पाना है तू कि राजीव कहना हिंदुओं ने सबर तो काम लिया। तो वरिंदर जलंधर के रहने वाला जिथे भाई आए हैं, उन्हें खबर दे दी है, ਵਧਾਈ भेजी हिंदुओं को। वरिंदर ने अखबार छपिया, सिखा दी कुड़ियां मंगना करन, सरूप साड़न, गुरुद्वारे साड़न, गड्डियां साड़न, इज्जत लुटन, ते प्रधानमंत्री का मुंडा ते अखबारों वाले हिंदू वो ਵਧਾਈਆਂ करने। अपना फार्मूला की है भरावां दा, अकाली दल का फार्मूला अपना की है। जे दल खालसे के नाम से कोई 10 मुंडे सिखां दे तुर पे, साडा जी उन्होंने कोई संबंध नहीं। जे खालिस्तान का नारा ला दिता कि सिख ने कि अकाली दल का इहदे भी कोई संबंध नहीं। जे जहाज अगवा करके कोई ले गया सिखां ने पुत्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संबंध रोस मुजाहरा करने वास्ते, ये साडा इहदे भी कोई संबंध नहीं। जे मोटरसाइकिल पर चढ़ के कोई गुरु का सिख तुर के शहीदों का हक लैण वास्ते, साडा इहदे भी कोई संबंध नहीं। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਰਾਂ वाले ने ये नियम कर लिया कि एक दिहाड़ी विच घट तो घट 100 सिखां दे पुत्र ने केस दाड़ा रखाउणा ते शराब छडाउणी है, ते अमृत छकण वाले पासे प्रेम है, पंथ नाल जोड़ना, केसरी निशान साहब दे थल्ले इकट्ठे ते गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लैणे ते अकाल तख्त साहिब नाल जोड़ना। साडा इहदे नाल भी कहंदे कोई संबंध नहीं। मैं तुहाडे पुछना चाहुंदा फिर अपना संबंध किहदे नाल है? अपना सिखां दा पुत्र कोई कदम चुकदा तो पार्टी कहती साडा इन्हां नाल संबंध कोई नहीं। हिंदुओं का पुत्र कोई माड़े तो माड़ा काम करता तो हिंदू कदे नहीं कहता कि साडा इन्हां नाल कोई संबंध नहीं। ये आप पढ़ाई किहड़े पाठशाला को सीखी है, किहड़े स्कूल से पढ़ के आए हैं? कि आप गुलाम नहीं? पंडितां ने घरे जम्मी कुड़ी जनता ने लैके वोटां, हिंदुस्तान की बनी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1977 और कीते कर्म अनुसार जज सजा देना सुप्रीम कोर्ट का, तो जेल भुगतन जाती है तो पाने होने सहयोगी जहाज अगवा कर लेंगे रोस मुजाहरा करने वास्ते। तो इन्होंने एक यूपी में, एक बिहार में सीटां मिलदियां, टिकटां मिलदियां। तो जो सिखां ने इस 14 सितंबर में चंदे कला संगत दी दित्तियां हुई 2 बसां, उन्होंने तो विच पुछ ने उन्होंने अग ला के साड़ दिता। 3 लाख का माल चंदे कला पुलिस ने लुटिया दिन दीनी। तो गुरु के सिखा तो ना रहा गया गजेंद्र सिंह होने तो रोस मुजाहरा करने वास्ते जहाज अगवा करके ले गए, तो उन्होंने देश निकाला। तो पार्लीमेंट च सवाल उठता
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੰਦਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਤ ਮਨਾਰੇ ਵਾਸਤੇ MLA ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇਹੱਕ ਗਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਹੋਵੇ ਇੰਦਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੇਸ ਮਨੇਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਜਾ ਸੰਸਦੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭੰਨਿਆ ਤੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ 51-52 ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਕਰੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਸੇ 'ਚ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਗਊ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ? 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਤੇਨਗੜ੍ਹ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹਿੰਦੂ ਦੀ, ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪਾਇਆ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਪਛੜੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਤੇ ਟਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਕੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ, ਖਿੱਚਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ FIR ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਤਾਂ ਸਤੇਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਲੱਭ ਗਈ ਡਰੇਨ 'ਚ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ, ਸੇਮ ਨਾਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਤੇਨਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਈ ਹਿੰਦੂ ਦੀ, ਲਿਆ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ। 2 ਬਾਰਲਾਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਮੇਰ 'ਚ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ 2 ਬਾਰਲਾਂ ਰਾਈਫਲ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਡਾਇਰਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ
कि ये वितकरा नहीं, कि ये गुलामी की निशानी नहीं। फैडरेशन के मुंडिया ने फड़ के उठिया लटका छड्डिया कि पंजाब दे विच एक भी हिंदुओं के मुंडे विद्यार्थी नूं फड़ के जेल च दिता। इदों वड्डा वितकरा होर की है? ये तसीहे दिते ने केवल सिखां नूं कि हिंदू पंजाब दे विच जिथे सिखां की बहुत गिनती है कि इस थां विच एक भी हिंदू ने मूँह विच गऊ का हड्ड दिता 36 सालों के सिख ने। जसवीर सिंह पिंड चुप की तहसील मोगा जिला फरीदकोट गुरुद्वारे का ग्रंथी जथे का मैंबर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कुछ नहीं निकलिया। केवल शक पै गई कि इतने सिख आते सिंह आते हैं जिन्होंने अतवादियों के खिताब गौरमेंट ने दिते है। तो पकड़ के छाती से बह के श्याम सुंदर सिपाही ने ਉਹਦੇ मूँह में थुक्या तो मूँह च तंबाकू घोरिया। ये हिंदू सिख एकता कि शांति जन्म लेगा, तशद्दुद जन्म लेगा। जंगीर सिंह पिता का नाम तारा सिंह पिंड इटावाली जिला फरीदकोट मोगे खड्डी बोंड का काम करते हैं। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोई चीज बरामद नहीं हुई। ਉਹਦਾ पग इतों चीर के मोटे थां तो इन्नी चर्बी विचों कढ़ के ते बरीक लूण रगड़ के ਉਹਨੂੰ भर के पूरे टाकी नाल बन दिता। वो मुंडा हुण बरी होया, परसों मेरे को इतों गया, बहुत पक्के हो गए। तो हिंदू सिख एकता देखो सिखो कितों भी हिंदू सिख एकता है कि ये गौरमेंट तुसीं ये नहीं दे रही। कलवंत सिंह नागोटा वाला साडे मैं खास करके अखबारों वाले भरावां नूं ये नुकते की बेनती जरूरी करनी चाहुंदा क्योंकि कई बार मिलिया घट जाता है तो रिपोर्टां इत्थे मेरे जांदियां बड़ियां विरुद्ध के आधार पर कई बार शिकार हो रहे हैं प्रेमी। कलवंत सिंह नागोटा वाला पुलिस ने पकड़ लिया, जज ने पेशी हुई, जज ने हुक्म किया कि डॉक्टरी मुआयना करवाया जाए। वो डॉक्टरी मुआयना कराने के थां उन्होंने मौत के घाट उतारिया गया। तो मौत के घाट उतारिया किवें? एक एक पोता हौरिया के नाल डॉक्टर ने कुट के डांगा ने तोड़िया, सज्जी लाते नहीं तोड़ी, उंगल वर्गियां सराखा लेरिया सीखा चक्कियां मोटियां करके गर्म पेट में तिना थाना तो लगाइया। मैं अखी सत्कार कराया, उन्हें पेशनान कराया, सुन के नहीं मैं कह रहा किसी को। उन्हें मत्था इतने सारे गर्म सीखा मेरे सराखा नाल फिर उन्हें मौत के घाट उतारिया। जोड़ा कहते जी मुकदमे अदालत में जाने चाहिए, हथी कुछ नहीं करना चाहिए। तो जोड़ा मुकदमा अदालत में गया ਉਹਦੇ बारे गौरमेंट ने की किया कि जज का हुक्म मनियो गुरमीत सिंह राह बंद कांड फड़िया गया। ਉਹਦੇ हत्थों ने सारे ने जमूरा नाल तोड़े गए, तराश के नाल खिंचे गए, एक नह तोड़ के जिंदे उपर लूण पुट्टिया गया, फिर दूजा तोड़ के दूजे नह से चुकया गया। तो कहते की रहे इको गल कहते रहे कि तू कहने भिंडरा वाले ने दम दिता। उन्हें उत्तर की दिता कि मैं तो जो कुछ लिया कलगी कर को लिया, तो वाहेगुरु के बिना ने कुछ कहा नहीं। तो जिसले नह सारे तोड़ दिते और भुलर बैठा उन्होंने कृपा करे संगत नूं जलंधर एसएसपी बने बैठा। ਇਹਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ सबूत है, इस चीज़ का मूँह तो ही पलटाने का समा है तो हो नहीं, बहुत बड़ा सबूत है मजबूती वाला। इन्हें वायरलैस की रह चुके पंजाब के मुख्यमंत्री जगत के दरबारे नूं कि ये नौ सारे तोड़ दिते, इन्हें तुसीं ये दिते है, ये बिना वाहिगुरू तो कुछ नहीं कहता, हुण की करिए? वो कहता हुण इहनूं गोली मार दो। इस तरीके नाल इहनूं मारिया गया। अमरजीत सिंह ढेरूवाल का की हाल किया, बलजीत सिंह का की हाल किया, बाकी होर कितने सिंह शहीद हुए हैं पकड़ के। जोड़ा कहते जी कि कानून किसी को हाथ च नहीं लैन देना, जनता को तो कानून हाथ च नहीं लैन देना, तो गौरमेंट को किवें परमिट लेके दिता हाथ च कानून रखे? ये पुलिस के हाथ च अपना कानून है। पुलिस का काम है मुजरम को पकड़ के जज के हवाले करना, तो जज का काम है सजा देनी, चाहे फांसी चाड़ दे तो चाहे उन्हें बरी कर दे। तो पुलिस ने कितने परमिट लिया इस कानून का भी असी गोलियां भुनना? इदों वड्डी बेइंसाफी तो धक्का होर कित्थे दसो? पंडितां ने करे जम्मिया जो मर्जी करे,
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਿਆ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਕਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੇਊ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵਾਲਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 57,000 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ 84 ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਟੂਰਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮੱਲੇ ਮੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਕਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਗ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਗ ਰਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਨ ਜਾ। ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ। ਵਾਰੰਟ ਮੇਰੇ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾੜੀਆਂ? ਵਾਰੰਟ ਮੇਰੇ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾੜਿਆ? ਚੰਗੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕੀ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਲਾ ਲਾ ਜੰਗ ਲੈਣ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ 'ਚ ਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਰਸੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ?
कि पिंडरावाला सरकार गया जी, पिंडरावाला कांग्रेस में रल गया, ये भी फलाने के विरुद्ध बोलता है, फलाने की उपज है, मैं उपज है तो गुरु गोबिंद सिंह साहब की उपज है, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ है। बाकी मता कोई ख्याल करे, कोई लीडर वजीर मैंने अपना बना लेगा। हाँ कई ये कहते हैं कि पिंडरावाला फलाने की झोली च पै गया, पिंडरावाला भी फलाने ने खरीद लिया, ये गल ठीक है, मैं खरीदिया भी जा चुका है तो मैं झोली च भी पै चुका है। मैं झोली च पिया 5 प्यारिਆਂ ਦੀ च जो अमृत छकिया, झोली च पिया सचखंड वासी संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरावाले, संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडरामेटे वाले ते गुरु की साध संगत तेरी झोली च पिया है। ते जेड़ा खरीदिया मैनू खरीदिया जहाज अगवा करने वाले ने, मैनू खरीदिया मोत छेकण वाले ने, मैनू खरीदिया जिन्होंने शहीदों का बदला लिया उन्होंने। ते पैसे वाले मता ख्याल करो तो कुर्सी वाले तो लीडरी वाले तो वजीरी वाला मैंने खरीद लेगा, वो कुर्सी वाले खरीद सकते हैं कि जेरी टकसाल का पढ़ने है कि अरदास करके सीस तली ते रख के 3 मील तुर के इतने पहुँच के अपना पढ़न पूरा करके इतने बराली वर्ग में छाला चुकानी है, वो टकसाल जिसे खरीदी गई तो कुल दुनिया खरीदी जाएगी। तो किहड़े बाग की मूलियां राजनीतिक बंदे से किसी पार्टी वाले कोई जो पिंडरावाला खरीद लेंगे। तो स्यापा ने तो यही होंगे, पिंडरावाला सरकार गया, पिंडरावाला कांग्रेस की उपज, पिंडरावाला पंथ का गदार। तो खुसरे तुसी भी बने बैठे, गुस्सा मेरा ना करो, पहले सुन लो पिछे तो लड़ते हो, खुसरे तुसी भी बने हैं। मेरा काम है अमृत छकाना, मेरा काम है कथा करनी, मेरा काम है हिंदू आदे धर्म च पक्का रहे। वास्तव में जो विचार करिए तो हिंदू जमदा ही कोई नहीं। तो तुम पढ़े लिखे वीर ये गल ना हम तो सहमत नहीं, सारी स्टोरी सुन के तो मैंने मनना पैना है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਂਦਾ ਲਿਖਤ ਚ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ, 9 ਕਰੋੜ ਦੇवी है, 1.25 लाख पैगंबर है, 52 वीर है, 84 सिद्ध है, 6 जति है, 9 नाथ है, 64 जोगनी है, 43 पद्म दांत है, तो सिखा ने मत मुताबिक 10 गुरु है। कोई दुनिया का पढ़िया लिखा फिलासफर ये दस सकता किसी ने केड़ा कटाया हो? एक ने केस मुन्ने सिद्ध करो जो इब्राहिम वर्गे ने मुन्ने जनानी ने दम दिता। सिख की निशानी है मुढ़ली केस से दौड़ है। हिंदू की निशानी की है? हिंदू वैसे अरबी भाषा है, अरबी के चोर नूं हिंदू कहते हैं। जिन्हें चोर रहने तो रहने, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ जम्मे है जे ਇਹੋ ਜਿਹੇ रहांगे तो सिख रहांगे, तो जे हिंदू बनना ने कैंची से पछना वरतना पड़ेगा। कैंची से पछने मुंह सिर मुन के हिंदू बनता है, तो कैंची पछना लड़ के सुन्नत कर गए तो मुसलमान बनता है। तो ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ जम्मे है जो ਇਹੋ ਜਿਹੇ रहिए तो सिख है, गात्रे कृपान पान गए तो सिंह है, सड़क से तुर गए तो सरदार है। हम ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ जम्मे जो हिंदू ਇਹੋ ਜਿਹੇ तुरन तो उन्होंने कोई बाबू जी लाल वाली छली राम गुली राम कोई कहेगा? सारे सरदार भी कह के राज मार बने। हम तुम देखो हिंदुओं विचों सिख बने कि सिखा विचों हिंदू बने, कुदरती असूल मुताबिक तेरा कोई जवाब दे पढ़िया लिखा तो पिट्टी सारे अखबार रसाले लीडर यही पिट्टी जाते हैं भी मैं नास का रेसा हिंदू सिख का यह नासा का रेसा टुट जाए, ये पक्का रहना चाहिए। ये दसो रिश्ता है कहना जम्मू सिखा जो विगड़िया वो कहना मैं सही ने व्डा, जो सुनिया सही बनिए वो कहते कि घट है कि गलत है कि छोटा है, कितों भी इंसाफ कितों का इंसाफ है? तो जोड़े हिंदू कहाउंदे भी है उन्होंने जाके बाजारों से पूछे हिंदू के लक्षण की है? 12 तिलक होने चाहिए हिंदू के मथे पे, नक पे, ठोडी, छाती, कच्छा, गला, कन्ना, गिट्टी से पाल गए तो 12 तिलक लावे, सिर पे बेबी रखे चोटी कहते हैं,
टोपी रखे, मैं गया जरूर गल च पा ले, शिवलिंग की चरमानत लड़े। इन्होंने पहले यह पूछा करो शिवलिंग जम्मिया कितों है, तो तुम्हें दसन ये जोर ला रहे हो कि जोड़ा इन्हें प्यो बारे भी दस देगा तो सही क्यों है। जिस वे शिव जी भगवान ने पार्वती केवल क्रीड़ा की कामदेव, उस वे विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्कर मार के 12 टोटे लंबे कर देते भी ना शिवलिंग ना पियाएगा। जो गलत हो तो ना तो फरवर बढ़ूंगा। तो ककारम तो शिवलिंग बने तो कहते असं सही है, तो भी पूजा करे, तो शेद वाले तलियां खड़कावे, तो तमाकू ना पीवे, वो हिंदू तो साढ़े कोई नफरत नहीं। साढ़े स्टेज से बोले बुलावे आपने करे सदेगा तो गाली बढ़ेंगे। मुसलमान है पक्का मुसलमान, मेरे मुसलमानों ने मत मुताबिक दो मत के मुताबिक तो फिर मैं रखूंगा। मुसलमान 5 टाइम से नमाजा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह उल रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह कौन जान रहे अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह कह के बांगा देने हो, मोहम्मद रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना हो, हाज नाल फलाह हाज नाल फलाह, आले बंदगी सिख तो आले मुक्ति फाड़े। ये रोंदा हो 4 मेरा ये पढ़े, मोहम्मद रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह 6 मेरा ये कहे, सुन्नत मुसलमान की कीती हो, मुहम्मद का पूज को खुराना पाश को कुरान का पाठी हो, लवा कटाना सुन्नत कीती हो, तो तमाकू ना पीवे वो मुसलमान साडा भरा हो। तो सिख पक्का सिख बने पक्का, जोड़ा सिख अमृत छक के दातरे कृपान पा के तो शराब पींदा, मेरे वाले ऐलान है तुहानू मिट्टी तेल का पीपा पा के जिंदे में अग ला के साड़ के मेरे को आए मैं तो मुकदमा लड़ो। हम तुम दसो मेरी लड़ाई कुरीति नाल है कि जाति नाल है। किवें कहंदी है कि हिंदुओं का लड़ाई बन गया, ये कितों की शांति है, ये मम्मी किली का शांति है कि ये प्रचार करना है, अमृत छकाना, रेत रखानी, केसर निशान के थले इकट्ठे करने, पंथ की डट के हमायत करनी, श्री अकाल तख्त साहिब के दरबार साहब में जोड़ना, श्री गुरु ग्रंथ साहब से लड़ लाना, जिन्होंने धीआ धाणा की इज्जत लुटी है, मासूमां का खून पीता, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब सूरत में अगर लाइया उन्होंने गड्डी चलाने इच कराना, तो गड्डी चलाने वास्ते प्रेरणा करनी। जो काम पाप ने, जो काम कांग्रेस ने, मैं कट्टर पापियों और कट्टर कांग्रेसी ने, जो काम जनसंघ है तो मैं जनसंघ है, जो काम अकालियां ने तो मैं जम्मू अकाली है, तो जो काम अकालियां है तो मैं अकाली है। अकाली तो अकालियां बड़ा भारी फर्क है। अकाली है अकाल पुरख ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, तो अकाली है अकाल ਕਰਨ ਮੰਨਦਾ है, वैष्णो देवी मां कह के मत्था टेक सकने पर गल के तो अकाली है। ये प्रचार है मुत का, तो प्रापेगंडा की है, प्रापेगंडा आगा वड्डा वड्डा चौधरीਆਂ ਵੱਲੋਂ भी पिंडरावा सरकार की बोली बोलता है। वो तो नाम ही दस दिने सुच्चा सिंह छोटेपुर गुरदासपुर अकाली दल का जिला प्रधान है, हरी सिंह जीरा फिरोजपुर जिला प्रधान अकाली दल का, तार सिंह संधू लुधियाने जिला प्रधान अकाली दल का, तो जसवंत सिंह आडे के बठिंडे तो कल भी खबर मैंने पता लगा निखेधी कर दी है दूसरे पक्ष से, पर पहले ये भी खबर आई है 6 सितंबर की अजीत इन्होंने चो मनुखों ने खबर दी है कि भिंडरांवाला ते जगदेव सिंह तलवंडी कांग्रेस के एजेंट ते पंथ के गदार हैं। मैं खुश रखकर तुम कांग्रेस किया कि इन्होंने लोगों ने गाला कढ़ना तेरे काम से भी फर्क किसी काम ना तुम दस के काम मेरा ये है, जो ये काम ही पंथ की गदारी है तो कांग्रेस का एजेंट पुणे तुम दसो मेरे अकाली दल का की करना। मेरे लाइसेंस सारे रद्द कैंसिल किए गवर्नमेंट ने, तो मैं सरकारिया तो कांग्रेसी है, तो श्रोमणी अकाली दल के सकत्तर गुरचरण के लाइसेंस बने तो अकाली दल है। मेरे लाइसेंस तो मेरे नालदा ने सारे ने रद्द है, तो उमर ने मेरा लाइसेंस बने कार बंद है। आ मोर्चे की गल कर रहा पिछली नहीं, मोर्चे दौरान ये अकाली दल है। 8 साल हो गए कमेटी सेवा मिले, कमेटी ने फड़े तो दसो कि अपने भरावां दे विचों लीडरां विचों जो एमएलए है उन्होंने गल करदा एमएलए की एक भी बचिया
ਜਿਹਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ नहीं खाधी तो खाधी कदों है जो दोनों बच्चा सड़ चुकी है, इस नूं अग लग चुकी है, 18 सिंह मिल के शहीद हो चुके हैं, मैं 25 दिन जेल च रहा है तो फैडरेशन के विद्यार्थी पुठे जेल च लमकाए जा चुके हैं। उदों पिछे जिद्दे ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति ने वोटां पाईआं उदे पिछले कि रखा किसी ने भरावां ने सिखा ने ईस्ट के कातल के घरों रोटी खा के भी अकाली, लाइसेंस बना के भी अकाली, इंदिरा भी मिल के भी अकाली, तो मेरिया थोड़िया दित्तियां जो बसा सड़ जान तां भी कायम रखी, लाइसेंस करा दे जान तां भी कायम रखी, सिंध शहीद हो जान तां भी कायम रखी, सिखा ने घरों की कुर्सी मेरे मारदा भी हो जाए तां भी कायम रखी, अग ला के साड़ देन तां भी कायम रखी, साडे पिंड दी मूंह ते अपने धी ते प्यो दा संबंध करा दिता जाए मैं तां भी कांग्रेसी। तो तुहाडा की फैसला है? तेरा उत्तर कौन दे? एक जी शांतमई है ये लंबी किन्नी कमाने का पता नहीं लगा। गौरव इतिहास ते सिख इतिहास विच अकाली दल के इतिहास नूं छड्ड के 2 पीढ़ियां लगातार कोई पढ़िया लिखा तो कोई लीडर तो कोई मिनिस्टर ये सिद्ध कर दे कि 2 पीढ़ियां शांतमई है तो मैं सहमति खड़ो के पर्ण करना अपने सर वट के तुहानूं दे दूंगा। अकाली दल के इतिहास में छड्ड के गौरव इतिहास से सिख इतिहास 2 पीढ़ियां लगातार शांतमई तो अपने इतिहास में जो हिंदा चल रहा है ये 14 पीढ़ियां शांतमई हो गई है। तो सिख इंदिरा में हो कि गुरु में हो? तो बोलते नहीं कि सिख तो जो गुरु के सिख है फिर शांतमई लम्मी किन्नी का? एक बजुर्ग ने मैंने पूछा एक दिन सीधा धोती बनी प्रेमी हो वो कहेगा बाबा जी जिस मनुख ने कुड़ी जम पवे तो 20-22 साल की हो जाए वो माता पिता को नींद नहीं आती, मेरी लड़की कुआरी नौजवान घरे बैठी है तो अपनी सारे शरीर लखी है शांति 40 साल की भी नहीं करे। 5वें पातशाह ने शांतमई शहीदी दी एक पीढ़ी तो 6वें पातशाह ने चंडी का नक च लकेट पाया कुत्ते च बधा सी जिथे ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति के अहुदे ते इस अहुदे ते चंदू सिंह जहांगीर के अगे जिवें इंदिरा दे अगे है इस अहुदे की प्राप्ति वाले जो गुरु घर से अख रखी तो गुरु घर में मरवाना चाहे तो गुरु घर ने बख्शा नहीं नक च लकेट पाया कुत्तियां च बधा सी उन्होंने बदला नहीं लिया। ज्यादा सियाणा 6वें पातशाह ने आप सारे 9वें पातशाह ने शांतमई शहीदी दी, 10वें पातशाह ने बदला लिया। 2 पीढ़ियां पीढ़ी और पीढ़ी हो गई है। एक तो गौरव इतिहास है अगे सिख इतिहास चल गया। छोटे साहिबजादे ने शांतमई शहीदी दी, बंदा सिंह बहादुर ने जानी खां ते मानी खां मरिंडे वाले थानेदारां कोठे चो कढ़ के जिउंदियां नूं साड़िया तो झूठा मंद जिन्हें सुक्का मंद ग्रंथों में लिखा है वो लड़की चंडाला नाल विआही है तो वजीदे की छाती से घोड़ा चढ़ाया बदला लिया सोते शब्दां का। दूजी वही पीढ़ी क्योंकि साढ़े हिंदी वाला आप नाजी औलाद है हाँ आप सिख वो भी सिख अपने भरा है उस पीढ़ी च बदला लिया। बाबा मनी सिंह ने बंद कटवाया तो दूजी पीढ़ी होंगी पुत्र के भतीजे की तो बाबा अगर सिंह की भतीजा से बाबा मनी सिंह ने उन्होंने जलाद का सर वधिया बदला लिया। कारू सिंह की खोपड़ी रखी अपने पैर की जुत्ती नाल एक सिख ने राही कुट के बांझा दिनों खान बहादुर जक्रिया प्रलोक में भेजा। खोपड़ी लियाउण वेले शांति है तो वो खोपड़ी लथ लिया छित्र फड़ लिया चल बन बच्ची लग अगे यही पीढ़ी है। लखपत जसपत ने सिखा मुकाउण का मुहैया किया तो भाई नभाऊ सिंह जिन्होंने अज में लोग पछड़ियां श्रेणियां कहते हरिजन कहते भी प्रेमी है भाई नभाऊ सिंह ने हाथी से चढ़ के लखपत का शहर आए वधिया सी जिन्हें कद्दू वाल वाले वध के थले फड़ गई दरख्त उसे पीढ़ी की बदला लिया। मतीदास भाई सतीराम भाई दयाला जी शांतमई शहीदी दी है तो रात को नरंग की छाती से चढ़े है। कोई इतिहासकार दसो
एक रात भी नरेंद्र ने पिछे दिल्ली सौर दिता सिखा ने। अठहत्तर चारा शांत नहीं रहे, 13 सिंह शहीद हो गए ते 78 जख्मी हो गए। तो सिखा का कातल कमिश्नर की कार में पहला तो सारी रात जलंधर रहा। 4 बजे अमृत वेले रामा मंडी मोड़ जी हुशियारपुर शंकर की जलंधर तो चौक कमिश्नर आप लंघा के आया तो दिल्ली कमिश्नर की कार च गया। फिर आप जो अपना अदालत का कुंडा खड़काया तो आप झूठे सिद्ध होए तो उमरा नंदी की गवाही नाल गुरबचना बरी होया, नाले मर गए ना जख्मी होए, कर लिटे गए तो अदालत भी झूठे सिद्ध होए। अखीर अपने हथी अपने आप ही कैस सवारियों रास्ता जो अख्तियार किया, गुरु कलगी धर के रास्ते चले। अस्सी च गुरबचन ने गुरु के लाला ने गड्डी चढ़ा दिता। भवन बनता पंजाब च किते दसो। मुड़ के फड़िया गया अमरीक सिंह बैठे इतने कोल मेरे फट बना ली तुहानू। ये तो 18 सिंह फड़े गए तो शांतमई मोर्चा आप फिर आरंभ कर दिता तो पुलिस ने गोलियां ने भुनने शुरू कर दिते। पुलिस झूठे पुलिस मुकाबले बना के फिर मारी जानू किसी गुरु के सिख नूं अख चबना पिया ते अगों मूँह तोड़ना जवाब देना पिया। हुण भी पुलिस पंजाब की है, इन्होंने कहोगा बड़ा झूठा पुलिस मुकाबला बना के सिख नूं बाहर लाउणा। पिछे फिर डंडा चाढ़ दिता। पिंडरां वाला सरकार गया, पिंडरां वाला कांग्रेसी, पिंडरां वाला टोलट है, इन्हें स्टेज से नहीं बोलन दिता जाऊगा, इन्हें साडा बाईकाट है, इन्हें साडे मत तोड़ माफिया चुप हो गया। चुप होने तो पिछों की होया 14 तो लैके 20 तरीक तक की हालत हुई हरियाणा में तुहानूं पहले दस दित्ती। हो सरूपां दा सड़ना, गुरुद्वारे दा साड़ना, ट्रकां नूं अग लाउणी, कुड़ियां सिखां ਦੀਆਂ मंगवां करनियां, सिखां दे केस कतल करने, छप्पड़ डुबो के मारना, ये 20 तरीक तक हुंदा रहा। अखबारां वाले भाईओ ते जिम्मेदार सज्जनों अपना की सी पुर जोर शब्दां च नखेधी छिट्टे गंभीर निकलणगे, सरकार जिम्मेवार होगी तो यह काम सरकार के एजेंटों के। ये 4 ठप्पा तो बिना गाह कलम क्यों नहीं पुट के छान लैंदी है। ये छिट्टे गंभीर नाल नखेधी नाल जिम्मेवारी नाल सरकारी एजेंटों ने कहन ले वो भाणा की इज्जत बच गई। तो जो 20 तरीक नूं इत्थे धरूके पै लगे पंजाब च, उदों पिछों हरियाणा की करके सिख मेरे भी आई है तो दसो। हुण भी तो हरियाणा च पुलिस कमेटी रह गई है तो हुण उन्होंने हथ चुकनी फिर आने की योजना असं तो बोलना ही नहीं, असं मंजी साहब तो नहीं बोलन देना। ये सरकार भी बोली बोलता तो मैं अपनी हम चुप। हुण इधे बोलूंगा जिसे सारे बांह खड़ियां करके पिछे ना स्यापा किया, मर गया किसी पास हल पा, उधर मैं भी बोल पूँ, मैं भी चुप ही हूं। ये शांत नहीं कदों तक रखनी है। हिंदू सिख एकता तुहाडी काहदी है, अगली सिख वक्री कौम नहीं। और चौधरी बनया बैठा तो ज्ञानी जैल से वो भी निंदा कर लेना, मैं सिख वक्री कौम का हल ही नहीं। तो भलिया मानसा ठीक है, तुम रब ने उदा दे दिता सरकार में तो पिछले तेरा पुरब चंगा होगा जां किसी होर कारण करके तुम मिल गया होगा। किवें कहना सिख वक्री कौम नहीं, मैं मंगाड़ के चैलेंज करके कहना सिख वक्री कौम है तो प्रमाण देना टेप रिकॉर्ड हो रही है। यह सुन के कोई उत्तर देने सर्वर ले लूँ। पहला तो जन्म तो सिख वक्री कौम है, सिख बिना जन्मदा ही कोई नहीं। सिख मुद्द है, बाकी कहने कहने तो पत्रे है। दूजा सिख इष्ट करके सिख वक्री कौम है, गुरु करके। गीता ने 18 अध्याय, कुरान के 30 पारे है। कुरान के 30 पारियां विच किसी हिंदू नूं कोई जगह नहीं। गीता के 18 अध्यायां विच किसी मुसलमान नूं कोई जगह नहीं। तो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच कोई नहीं थां दिता है। इत्थे जनाह विचों कबीर जी बैठे है, चंदियारां विचों रविदास जी बैठे है, घुमियारां विचों बेणी जी बैठे है, नाइयां विचों साण जी बैठे है, शीजियां विचों नामदेव जी बैठे है, ब्राह्मणों विचों जयदेव जी बैठे है, जट्टां विचों धन्ना जी बैठे है, हरिजनां विचों बालवीर जी बैठे है, तो वेसलां विचों गणका बैठी है, पापियां विचों अजानल बैठा है। इत्थे थां दिता किहनूं नहीं। इस वास्ते कबीर जी ने कहा, कबीर जे दर आदत जाको हट का ना ही कोई, सो दर कैसे छोड़िया जो दर ऐसा हो।
इस करके सिख वखरी कौम है। किसी मसीत हिंदू मत्था नहीं टेक सकता, किसी शौदवाले मुसलमान मत्था नहीं टेक सकता। क्या दरबार साहब तो केड़े हिंदू तो मुसलमान ने मत्था टेकने रोके है? इस वास्ते सिख वखरी कौम है। खत्री ब्राह्मण सूरदास उपदेश 4 वर्णों को समझे, गुरमुख नाम जप उधर से कारमा घट घट मानक मज है। इस वास्ते सिख वखरी कौम है। एक दरवाजा मसीत का होगा, एक दरवाजा गिरजे का होगा, एक दरवाजा शिवदवाले का होगा। जे 4 दरवाजे होंगे तो केवल गुरु के स्थान से होंगे, 4 दरवाजे का मंदिर किसी नहीं मिलेगा दुनिया को। इस वास्ते सिख वखरी कौम है। दुनिया का चक्कर कट लो, किसी शिवदवाले, किसी मसीत, किसी गिरजे में तो लंगर नहीं मिलेगा। जो लंगर संगत पंडित को मिलेगी क्योंकि एक गुरु के दरबार से मिलेगी। इस वास्ते सिख वखरी कौम है। हिंदू ने घर वाली टोपी नहीं रख सकती, हिंदू ने घर वाली बोधी नहीं रख सकती, हिंदू ने घर वाली जनेऊ नहीं पा सकती, हिंदू ने घर वाली 12 तिलक नहीं ला सकती। मुसलमान के घर वाली सुन पाता सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नमाज पढ़ नहीं सकती मसीत विच, जे पढ़ सकती है तो विचारे पर्दा पा के पढ़ेगी, ऐਵੇਂ नहीं। इस वास्ते कबीर जी ने खंडन किया। कबीर जी कहते सुनत कीजिए तुर्क जो होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीर मारना शोभा पाते हिंदू ही रहिए। जे सुनत कीते तुर्क बनना, वो बंदे की सुनत का कर देना, जनानी की सुनत की करोगे। इस वास्ते मुसलमानों अजे तुसी मुसलमान हो, अजे तुसी हिंदू हो। तुसी मास्टर हो, टीचर हो, 2 बच्चे शहर के तुहाडे कोल पढ़न आउंदे हैं, एक नूं तुसीं कोल बिठा के पढ़ाउंदे हो, एक नूं थल्ले पौड़ियां दे विच बिठाई रखदे हो, उहनूं कहंदे मੱਥੇ ना लगी मेरे। तो रजिस्टर में हाजरी दोवां दी है, कदे सलाना इम्तिहान होया पास मुंडा वही होगा जो कोल बैठा भी मੱਥੇ नहीं लाया नाटिए, तो सवाल दसो में पास होगा कहना होगा दसो। तो बोल देना कोल बैठा पास हो, थले बैठा है। तो जोड़े धर्म विच कि जनानी मੱਥੇ नहीं लग सकती, वो कितने जाएगी? मर्द तो देख के स्वर्ग में चला, जनानी कहना खूरी दिखेगी। इतने एक सिख धर्म है, जो अमृत ना खंड का छका घर वाली छकना पड़ेगा। जो मर्द अखंड पाठी है तो घर वाली पढ़ी है तो भी खंड पाठ की राय ला सकती है। जो मर्द कीर्तन करता है घर वाली भी कीर्तन कर सकती है। इतने एक पढ़े लिखे जो चमचागिरियां करने वाले कुछ सवाल उठाते हैं हिंदू सिख एकता प्रमुख रख के, वो कहते जी तू ये सारा प्रचार करता है तो सिखा में फिर बीबियां नूं 5 प्यारों का प्रसार क्यों नहीं, जिन्हें 5 प्यारों चलाते क्यों नहीं? ये कई सवाल उठाते हैं गुरमत नूं नीवां दिखाने वास्ते। उत्तर खालसा जी ये है, जैसे 1756 बिक्रमी तो 1699 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने खालसा पंथ की सिरजना की है। उस वेले कलगी धर्म नहीं सीखिया कि मैनू एक मर्द के सिर की लोड़ है, मैं जनानी के सिर की लोड़ है, नहीं सीखिया। उस वेले संगत तलवार कढ़ के क्या सी कि गुरमुखो सानू एक सिर की लोड़ है, कोई एक सिर दो। तो 5 प्यारों से लगना सी तो साडियां मावां धोने में बैठिया ने एक की सिर बनवा लेंगे। 5 प्यारों च ना लाना तो 5 प्यारों का प्रसार बीबियों को ना देना। यह मुख्य कारण यह है कि सिर 5 मर्दों ने बढ़ाया सी, इस वास्ते मर्द चिन्हों वाले नहीं 5 प्यारे चला जाएंगे, दूजे नहीं। बाकी थाने तो दसो बिस्तरे कितने है? कोई जवाब दे सकते तो दे दो। तो जिन्ने तुसी आए हो गुरु के सिख तुहाडा परिवार है मेरे वालों, और ये भी कई बार कहेंगे है भिंडरां वाला चौकरियां के फट्टे तो फिक्र ना करे कि कह रहे महाराज तो पीड़ी पैसे लत में टुटी 20 महीने तो भी फट्टा कितने चुक जाओगे? तेरे 20 महीने फट्टे चरा के रखे, मैंने दवा तो बाद कितने वेखिए जो कितने जाके मेरे फिर बाह कितने रखनी है? वो भावना लुटिया गई इस छाड़ दिता है। गुरुद्वारे में अगर ना सिखा की अजित लुटी गई तो तुहाडे कान से जू नहीं सड़की, तुम कहने फट्टे चुक रहे हो, कि चुकना फट्टे तुम? ये कहनी है संत जी जो कहेगा करांगे। मैं एक बेनती विशेष तौर पर की है,
ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, 20 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਓ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੋ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਠੁਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੰਤ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਓ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਕਈ ਵੀਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈਣ ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੈਣਾ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਸੀ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗੀਏ ਮੋਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੱਸਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਰਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 6ਵੇਂ ਪੈਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 6ਵੇਂ 'ਚ ਕਿ 12 ਬੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਬਾਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਖੀਸੇ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਾਨ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ 30 ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, 15 ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ MLA ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ, ਤਰਦੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਕਾਰਬਾਨ, ਤੇ 3 ਵੱਖੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ 230 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 230 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, 30 ਘੱਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, 200 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇਸਨ ਮਰਨ ਭੇੜ ਜਾਨੋ, ਗਾ ਕਾਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤਾ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ। ਇਹੀ ਮੇਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੋ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇਸਨ ਨਾ ਦੇਣੋ ਜੁਗਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੱਲੀਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲੀ ਵਰਗਾ, ਛੰਨੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਕੇਸਾ ਤਾਰੀ ਰਹਿ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਕਰ ਪਾਣ ਖੰਡੋ ਖੜਗ, ਤੋਪਕ ਪਵਰ ਔਰ ਤੀਰ, ਸਾਬ ਸਰੋਈ ਸੈਤੀ ਲੈ ਹਮਾਰੇ ਤੀਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਮਾੜੇ, ਕਿਰਪਾਨ 6 ਇੰਚੀ 9 ਇੰਚੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੇ ਛੱਲੀ ਰਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਘਰ ਲੁੱਟਣਾ, ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ
किन्नी कटाकटी शुरू हो जाए, किन्नी शांतमई हो जाए, जो मर्जी अंदर फिरे। जे किसी की धी भाण अपने घर आए, भावें नरकधारियों भी क्यों ना हो, चाहे किसी होर की हो, धी भाण घरे आ रहा है, अपनी भाण समझ के घरे रखने की इज्जत नहीं लिखनी। ये चेता रखे अपने मन में। अपने इस हुक्म का शास्त्रधारी होने का शंभू रावणा वालों की है। तुलसी भगत ने आराधना की तो रामचंद्र जी प्रगट हो गए, तो रामचंद्र ने प्रगट हो चंगी धोती बधी है, सिर से सोना जूड़ा रामचंद्र जी ने, तो तुलसी मत्था नहीं टेकता। तो भगवान रामचंद्र जी कहने कि गल मत्था नहीं टेकता, कहना तो रामचंद्र भी हो आना, मैं तो तेरी भावना करके प्रगट ना हो है, कहना बिल्कुल गलत है। तुलसी रामायण पढ़े कदे, तो लिखा हुआ तुलसी मस्तक तो टिका धनुष बाण हो हाथ। तुलसी जी कहते रामचंद्र जी साडा मत्था तेनों तां टेकेगा जे तेरे हाथ से धनुष से तीर आउणगे, राम नूं मारनगे असीं। उधरों पैरोकार रेबर भी कहना धनुष से तीर लिया, तो इधर रेबर पैरोकार ने कहना लिया कोई तलवार लाया, बंदूक लाया, रिवाल्वर लाया, तोप लाया, उधरों कोई तो लिया। हुण तुसीं सोच लो भी किहदे पुत्त बन के चलना। गुरु के पुत्त बन के शास्त्र रख लो, इंद्रा के पुत्त बन के चपली झाड़ लो। वैसे गोरे इतिहास जोड़े की पूजा तो हैगी है, गुरबाणी की पूजा तो हैगी पहले ही, पर चपली की पूजा दुनिया च किते नहीं। चपली की पूजा है तो एक दिल्ली भवन के हो रही है, होर किते नहीं। हुण प्रचार है नित दा इह ते कहंदे पिंडरां कांग्रेस नाल रल गया। मेरे को भाईओ कोई कांग्रेसी आ जाए, कामरेड आ जाए, चाहे कोई होर आ जाए, मेरा काम तो डाकरे किरपान पाउणी ते ओहदे नशे छडाउणा है। जोर पर तुहाडे चों उठ के कोई कांग्रेसी 5-7 कह देण कि पिंडरां वाले सानूं अमृत छका दिओ, तो मैं किवें उहनूं कहूंगा नहीं छकाउंदा। जे मेरी ड्यूटी अमृत छकाउण दी, मैं ड्यूटी की कताई करांगा तो कलगी पर मैंने मुआफ किवें करनगे। कई वीरां नूं इह भी शक है कि बठिंडे के इलाके च सिमर प्रचार भी कुछ है, मेरे को रिपोर्टां आईयां कि पिंडरां वाला श्रोमणी अकाली दल का प्रधान बनन फिरदा। ਇਹਦੇ बारे में स्पष्टीकरण तुहानूं जरा दे रहा। अखबारों वाले तो भाई छापते नहीं, अज प्रेमी मिले शहर बचाए सुन के छाप दें तो चंगी गल होगी। बहुत घट छाप रहे, कहते कि करड़ा काम है। हुण ये बाबे खड़क सिंह ने लेंटर पाया, सरिए ते गाडरा पा पा के ते लेंटर मजबूत किया, तो पाउणा आउंदा लेंटर के विच पाउणगे वंज वांस होवे खड़ो जांदा। जे गल्लां करड़ियां तो फिर काम भी करड़ा ही होगा, तो जे गल्लां पोलियां तो ताने सैंकड़े सालों छित्र खाई जांदा। मैं अपनी जिंदगी में अपनी मैं खुद की गल कर रहा, जथे सिंह की नहीं कि 13 साल करे जथे सिंह की गल भी लपेटी जाता है। मैं अपनी जिंदगी श्रोमणी अकाली दल का प्रधान, श्रोमणी कमेटी का प्रधान, कोई श्रोमणी कमेटी का मैंबर, MLA, MP, वजीर किसी भी मुरादबे पर मैं बैठा, जो किसी गुरु की संगत सजा देंगे मैं भुगतांगा। मैं तो ना तुहाडा लीडर है, ना तुहाडा संत है, तुहाडा चौकीदार है, गोला तुहाडा नौकर है। जोड़े झाड़ने प्रचार ने जिन्हें हम झाड़ के हटे हैं। नौजवान एक तुहाडा करने की बेनती है, बिठाने तो वखरे वखरे भी पाउणगे, वखरे कर लगे तो सूत नहीं होना काम। जिथे जिथे बैठे हो, जिन्होंने केस दायरा कटाया तो शराबा पींदे हो, उन्होंने एक बेनती है तो ध्यान ना सुन के हाँ क्यों छेती दिन हाँ मेरे को क्यों मेरे को एक जोड़ा पिंडों में 2 जथेदार के तौर पर सेवादार चुने जा रहे हैं, उन्होंने प्रति भी एक बेनती है, मेरे नाल ना लिखाओ जिन्होंने फांसी का रस्सा चंगा लगता है, जिन्हें चरखड़ी से चढ़ना, जिन्हें फांसी का रस्सा चंगा लगता है चरखड़ी से चढ़ना, जिन्हें उबर के देगे नाल प्यार है, जिन्हें मोटरसाइकिल से चढ़ के हक लेना ते अपना सीस तली से रख के यार की गली च फिरना, मेरे को ना लिखाओ। तो जिन्हें टिकट लेनी है कुर्सी वाली, दूसरी टिकट नहीं, कुर्सी वाली टिकट जिन्हें लेनी है तो मुंडे कुड़ियों ने नौकरी से लिया, वो लालची चाह के मेरे को ना लिखाओ, आप जिथे मर्जी खा लो।
मेरे को लालच लूलच कोई नहीं है कि चेयरमैन की कुर्सी दिन तक मैंबर बनाऊंगा। फांसी चढ़ने तो लिखवा दो, हक लेने तो लिखवा दो, मरना तो लिखवा दो, देश कौम की राखी वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब वास्ते खून देने तो लिखवा दो। तो जो कुर्सी तैयारी रखनी चंद बचाना तो फिर जिधर मर्जी लिखाओ, मेरे को भुलेखे च नहीं किते आ जाओ। एक जिन्हें केसदारा कटाए शराब पींदे हो, तो चरणों च एक निमरता सहित बेनती है, तो मैं भरा बनाना अपने। जे तो भरा बनना तो हाँ कह दो, नहीं बनना तो ना कह दो, पर अजे होने ना भाई सुन ले सारा। हाँ तां क्यों जे मैनू चंगा समझदे हो, जे लुच्चा समझदे हो तो फिर हाँ ना क्यों जिम्मेदारी कट्टी है, तो बोलियो भी वही जिन्हें कट्टी जिन्हें रखी उन्हें रच बोलियो। मैनू चंगा समझदे हो, मेरे भरा बनना तो केसवाड़ा रखना, शराब छड्डनी है, फिर हाँ कहो। तो जे मैंने लुच्चा समझदे शराब पीने की दाढ़ी कटाउणी है तो फिर ना कह रहे। ये फैसला कर लो जिन्होंने कट्टी है, देखो भरा बनना कि नहीं बनना। जे बनना है तो ये जे चंगा कहोगे केसदारा रखना पैना तो शराब छड्डनी पैनी है। लुच्चा कह रहे खड़ा छुट जू। जे केसदारा रखवा के तो तुहानू क्या मैनू संत मनो तो मत्था टेको, आपकी रगड़ के मुन लो। वैसे पहले रगड़ के मुन के भी कहनी भी मुन लो। तो जे तुहानू क्या मेरे चेले बन गए तो भी मुन लो। भरा बना के चलना तो भरा मैं तुहाडा मैं चेला, मैं तुसीं मेरे चेले हैं। ये नित का प्रचार। तो हुण तुसीं जिहड़े सारे विशेष तौर पर बठिंडा ते रोपड़ का इलाका है, बाकी भी सारी संगत जितने आए हो, एक संग उठ के दसो भी हुण मेरा प्रचार ये पंथ के हक का कि कांग्रेस के हक का, जाके सिੱਖੀ असूलों का। तो फिर जो अखबारों में नित आउंदा है ये सरकारी है, ये कांग्रेस का एजेंट है। मेरे मन च तो बोझ कोई नहीं, पर मैं पूछना पाया पुनः तो सारे मेरे को आन के कहनी असीं तेरे नाल है, तो जो बाहर गाला करने तुहाडे काम तो जूनी सर्किल करदे क्यों है। इन्होंने हटाउण का एक रास्ता है, पग ला के नहीं हटाने, कुट के नहीं हटाने, गाला कढ़ के नहीं हटाने, इको एक रास्ता इख्तियार करो। जेड़ी स्टेज से गाला कढ़ने वाला कोई बोलता है तो इतने संगत बैठी होंगी है हजारों के हिसाब न, उठे उठ के जिन्हें अखबारों च गाला कढ़िया उन्होंने कहो हाथ जोड़ कर गुरमुखा असी तो हाँ गदार नाल ते तू सतो बई, तो तेरे वास्ते स्टेज से थां कोई नहीं, तू कृपा करके अपने घर में जा। असी मोर्चे च भी जावांगे, जथा लेके भी जावांगे, पंथ वास्ते अपना पुनदान भी करांगे तो खून भी डोलांगे। पंथ भी असी नाल है, पर जो तू निंदा करने वाला है असी तेरे नाल नहीं तुरन उससे गरार नाल तुरांगे। जो संगत ने जवाब देते ना तो जिन्हें मरी मां को दब के साड़ के आया होंगे, इस तरह मुंह करके मुंडे में साफा रखे तुरे आउणगे, पता लग जू संगत खड़ी कित्थे है। वो गदार कहते हैं, तुसीं 600 का जथा लेके आ जाते हैं तो कानून गदार कहेंगे कि उन्होंने ये नहीं कि एक मनुख ने गदार कहने तो जथे बंद करना बिल्कुल गलत है। जथे लाने है ये मोर्चा ना तो लंगोवाल का, ना ये मोर्चा भिंडरां वाले का, ना मोर्चा किसी होर लीडर का, ये मोर्चा असले पंथ का है। मोर्चे की सफलता जरूर हर करना, हर कीमत से करना भी आनंदपुर के मते पे है। ये नहीं चंडीगढ़ 60-40 हो जाए, फलाना कुछ हो जाए। एक समा परखना होना तुहाडा भी तो मेरा भी, उदे पता लगना भी कुंडियां संग देण तो निखरदी किहड़ी है, उदे पता लगूगा। जो काम पूरा होने लगा, जे तो आनंदपुर के मते के आधार से पूरा काम हो गया फिर तो आप जकारे छड्डने सारिਆਂ ਦੀ। तो जे उदों काम कम होया, घट होया, थोड़ा होया तो फिर मेरी जिम्मेवारी एक काम दसन की, तुहाडा चौकीदारा करन की कि ਸਿੰਘੋ आनंदपुर के मते की कापी ये क्या कुछ लिखा होया तो इन्होंने भरावां ने लिखा, मैं तो लिखा नहीं, ये मुताबिक आ चीज़ां मिलियां, बाकी इन्नियां रहिंदियां, तुसीं दसो हुण की करना। तो जे तो लकीर के फकीर बन के घर नहीं जाना होया तो फिर दोबारा छित्र खाने जकारा छड़ दो, फिर पूरा हक लेना तो फिर डट दो। जिम्मेवारी मेरी दसन की, जे तो दसन तो मैं कमजोरी विखाई ना कि लीडर की कान मनी तो मैनू तुसीं मुआफ ना करो। तो जो लकीर के फकीर बन के तुसीं कर गए ना काम की तुहानूं मुआफ कानून नहीं करना,
और कि दो वीर रसी गुरुओं ने स्थान से मोर्चारण हो आए हैं। आनंदपुर का मता पास होया पुत्रों ने दानी के स्थान से जिसे खालसा जम्मिया है तो यही अरदास हुई है मीरी पीर के मालक के स्थान से वाकई का कम खड़ा नहीं किते तो दोनों गुरु एक परिवार ने चिपकाने दूसरा किराए पा के सार में माफ करने कोई नहीं दोनों तो ये आपका देख लो सोच लो कौन पेटे बारे। तो समाप्ति में एक बेनती है तो चरणों से दो लीडर आए थे इधर गांव भेज दो एक नलीनी साहब आते थे एक होर नाल सरदारों से कोहली उन्होंने इतने भेज दो मेरा तो ढंग नहीं होनी आ लंघिया देखा फरदा छड़िया तो नलीनी साहब इस नाल इस उन्होंने कहा गाँव जाना संगना एक दो आ गाँव लगा पिछले मुझे जाना वाहगुरू जी के खालसा वाहगुरू इतने बहरो इतने आया बहुत कोर्स नहीं कहना ज्यादा तो लाया काम रखो थोड़ा जा सो एक बेनती है सारी संगत के चरणों में पंथ की नंगे ताड़ हमायत करनी है नंगे ताड़ घुंड जा कढ़ के नहीं जिवें कई बार ये भाई घुंड कढ़ लेंगे ना किसी की मदद करनी पवे कि लोके तो कर देने प्रताख ना सामने ना गल करें किसी को इस तरह नहीं करनी घुंड चुक के पंथ की मदद करनी है डट के केसरी निशान केसरी निशान साहब रहना थले श्री गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी ने पूजना नहीं अकाल तख्त साहब तो हरमंदिर साहब तो दूर नहीं होना पर ये एक नुकता जरूर चेते रखियो इन्ना कहा चलो पिंडा वाला कहते पंथ की हिमायत करनी है ठीक है जो मर्जी खड़ो जो हिमायत की हिमायत है ये एक गल चेते रखनी जरूरी केसरी निशान साहब का नाम लेके श्री गुरु ग्रंथ साहब का वास्ता पा के पंथ के नाम की डुगडुगी खड़का के हुक्मनामे की उलंघना करके शहीदों का खून पी के नरक धारियों बापू कह के उन्होंने तो वोटा लैके कुर्सी में कायम जिन्होंने रखे जा रखने के इच्छुक है उन्होंने तो बच के रहो जे तो ना नरक धारियों ने घरे जाके वोटा मंगिया या मंगा तो मेरे को जिन्हें तुम होना दोबारा पौड़ियों में चढ़ो तो जो तुम्हें दसदा ही मैं थोड़ा चौकीदार है तो फिर भावे घर में जाओ फैसला तुम अपना आप ही करना मैं अपने हथ च फैसला नहीं लगता लीडर तो आपके हथ च रख देना भी दूजे ने फैसला किया कि भेज ना दे नंबर सानू ये फैसला चेते रखियो तो एक जो हरमंदिर साहब कई पौधे करना की है निशाना की है टारगेट करके दसना चाहिए टारगेट यही है जिदे हरमंदिर साहब से पता लग जाए कि पुलिस ने हमला कर दिता है पर पूरा पता करके ये ना जाके कोई चिटना छड़ दे पूरे काम शुरू कर दे जिदे हरमंदिर साहब से हमला हो गए उस दिन आपके लाजले कस्बे के वड्डे शहरों में आ पग तो बिना कोई दिसना नहीं चाहिए मुसलमानों से तरस करो पर यह गल मैं ता कही है जो हरमंदिर साहब से गल हो कई ने रूप देना ने पंडराया कि चुक दे फिर करे फटे इस तरह नहीं ये गल रखी है भी जे इतने हो तो ये चेता रख लो कि किक्कर के दाने में वढ़ते फिर जो फड़े धूपां में वढ़ते होंगे हो ये पहले ही अपनी तैयारी करके रखियो थले भी जगह छड्डी जाते साढ़े में सहमत हो गए आर्डर तो आर्डर एक मेरा होंगे आर्डर किमें कहना मेरे वाले तो हो गया पर आर्डर मन फिर गए आर्डर मनिया नहीं किसी ने जिन्हें बैठे किन्हों ने सहार ले है एक जोड़ा कहती है अखबारों में भी आता तो कई आन के मैंने पूछते हैं संत नहीं कोई हिंदुओं बारे स्पष्टीकरण दो ये ठेका ले नहीं संत साहब सिख स्पष्टीकरण मिले एक सोचते हैं खालसा बारे कोई दसा करो सानू तो की ख्याल है मेरा ख्याल तो बहुत मेरा तुम पढ़ा होगा अजय गुरमुख है उन्होंने भी कहेंगे विच जो एडिटोरियल को लिख सकते हो तो लिख दे कलम कम कर सकते हो मैं ना तो खालसा का विरोध किया
तो ना अजे हमायत की है, ना विरोध किया, ना अजे हमायत की है। देश में ही आप रहना है। जोड़े लोग कहते ना देश के निकल गए, इन्होंने बड़ा भारी भुलेखा है। वो ना कि दसो जो हम दसो से लीटर दो एक गिरी लाल कोई जान है, उन्हें अपनी एक खबर दी है कि 11 बज गए है, 1 घंटा रहना 12 बजन से मथे तो लगा नहीं तो उन्हें लिखना नहीं इसलिए। तो मैं अखबारों वालों में बेनती जरूर करता है, खबर मेरी छाप के बाकी को कटनी है तो तारी मर्जी। गिरी लाल संबोधन करके कि गिरी लाल तेन पता नहीं जो तुहाडियां 30-30 हज़ार जांदियां सी, उदों पग्गां वाले छुड़ा के लियाए है। कैंची ते पछना दोहदा ते फिरका परस्ती के प्रतीक है, किरपान एकता की प्रतीक है। जिहड़ी किरपान नूं अज 12 बजे वास्ते मनाया जाता है, वो कैंची पछने वाले चेता कर गिरी लाल वर्गे जान वर्गे ते बाकी भी जिस तरह बैठे प्रधानमंत्री तक ਜਿਹੜੀਆਂ 30-30 हज़ार छड़ाइयां वो कैंची ते पछने वालियां ने कि कैंची ते पछने नाल नहीं छड़ाइयां, वो किरपान वालियां ने किरपान नाल छुड़ा के लियांदियां सी। वो चेता रखियो। ਜਿਹੜੇ देश का राजे बन के सिखां दे 12 ਨੂੰ ਮਗਾਰ ਰਹੇ 12 ਵਜਣ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ने 100 ਪਿੱਛੇ 90 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। एक प्रेमी आया इतों का फ्रांस का, वो कह लगा जी अगर तुम 2% है, 98% है, तुम लड़ोगे किमें। दास ने उत्तर दिता कि शेर का एक होंगे जिंदगी च मसा, तो सूर्य 6 महीनों पिछों 12 जम पेंदे है, तो कुत्ते कतूरे टंग टंग का बथेरा करते हैं, पर जो कदे निकलना घोरने चो तो छंदा कोई नहीं जमे चो। असं इस तरह करेंगे। तो जोड़ा कहते कि 12वें घंटे जाना कि नहीं, इन्होंने दस देना सिखा के 12 कदों वजदे ने, तुहानूं भी दसना पैना संगो। बहुतों ने पता नहीं सिखा के 12 वजदे कदों रहे है, ये लोगों ने मखौल बना लिया। सिखा के 12 उदों वजदे होंदे सी जो जालमनी फौज पहले महीने च रात को 12 बजे ठंड की मारी सौ जाती सी, ते सिख रात को 12 बजे हल्ला बोल कर चौड़ा छकन देंदे सी। ते जेठ के हाड़ के महीने च 12 बजे दिने अंदर वड़ के सौंदे सी, ते सिख वो बाहर निकल के चाह तो छका के इन्हें गिरी लाल उन्होंने छड़ा के लिया देंदे सी। उदों सिखां दे 12 वज जांदे सी। तो असं तुहानूं दसना चाहुंदे हां जो 12वें घंटे की गल करदे हैं, ये 12वें घंटे च असीं लड़ना, हर हालत लड़ना, तो 12वें घंटे च वड़ के कि तुहानूं दसांगे 12 सिखां दे वजदे किवें चेता वेखो किवें आउंदा तुहानूं। हद होगी है गिद्दड़ का तो बांगड़ी का पुत उठ के संघ में तो शेरों में घूरता। पार्लीमेंट से बैठे बढ़ के मारी जाने, मैं तो अगे एक चैलेंज किया अज ये बयान तो फिर करदा भी जिन्ने तुम पार्लीमेंट हाउस के मैंबर हो, जिन्ने वजीर हो प्रधानमंत्री के समेत अपनी गिनती दसो, तुसीं भी 15-15 तुसीं आ रहे तो एक साहब ऐसी निकले होने हैं, तो पता लगू खड़े कितने के उत्थे बैठे कलम का हुक्म दे करके मराई जाने छलियां उन्होंने थले आ रहे हुक्म दे देना बहुत सौखा है, पर जो सीस तली से रख के जथेदार बन के अगे तुरने पवे उन्हें बहुत औखा होंदा है। तो जैन गिरी वर्गे नूं चेता आ गया भेडां ने तो मच्छर सी, मेरे भी मच्छर गए, तो किसी होर ने तो सानू मगारना सी, ये छलीराम नूं नहीं मगारन लगे, पर छलीराम नूं मगारन का कोई कारण है, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਚੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਪੂਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। साढ़े को रिपोर्टा भी कल परसों में आईया
सिखा ने दरखास्तां दित्तियां ने, विचारों जवाब मिल गया, पर घबराओ ना, कोई नहीं, तुहाडे कोल तां मामला करने के पैसे नहीं, तो लाइसेंस लओगे, अपना हथियार लओगे कि नहीं? तुसीं इन्हां नूं बनाई चलण दे पिंडां 'च दब के, ते जिद्दे समा आ गया खोह लिओ ते ढिल ना करो, उड़ीकदा ना रहो भी पिंडां दा हुक्म करो खोवांगे। उदों पहले पासे भाई होए ना, किसी ने शांति रखिए, पर जो सिद्धियां करके चलाउण लगण ना, उदों खोह लैणियां, ढिल नहीं करनी। होर कोई सज्जन ने प्रश्न करना, कोई रह गया तो दस दो। बाकी जिन्ने के प्रश्न मैं किए है वो उत्तर हिंदुस्तान का कोई मनुख दे दे, मैं अपने सिर कट के अपने हथी तुहानू दे दूंगा। तो जे गल्लां सारियां सच्चियां तो फिर तुसीं सोच लो आप गुलामी करे लाउणी है कि नहीं लाउणी। जेड़े उत्थे बैठे इंदिरा के सोहले गा रहे उन्होंने कोई शर्म तो कम लेना चाहिए। लड़कियां नंगियां उन्होंने सिखां दी मुछां बन के घरों तोड़ दिते है, इसनूं अगों ला दित्तियां, कहंदे भी विधान की 25 धारा सार दित्ती, बड़ा पाप हो गया। हाँ पाप एक जरूर है साडे लीडरां तो, वो महाराज कृपा करे पाप तो गांह बचा लवे। एक पाप होया वो सारा ही साड़ दिंदे ने, चंगा सी एक कागज़ साड़ के की करना सी। जेड़े विधान ने 37 सालों च सिख कौम नूं बचाया ही नहीं, इज्जत नहीं रखी, तो रख के की करना सी। कहते जी अस हिसाब किताब कहते सिख 2% है, बह के टेबल से गल करो फिर दसोगे किन्ने फीसदी है। 90 सिर असीं दिते है तो 10 छली राम उन्होंने दिते है, साडे नाल हिसाब कर लैण। जे तो ब्याज पाया तो उन्होंने कख नहीं बनता हिंदुस्तान च, पर सिख ब्याज लैंदा नहीं, तर्क कर लैंदा, ब्याज छड़ देंगे। 90 सिरां की धरती सानू दे देण तो 10 सिरां में जिथे कहीं पहाड़ी एक अद्धी मर्जी ला लेंगे, लैनी अपनी समुद्र च वड़ जाण सारे। देखो गुरु का हुक्म है, भैकाहू को देत नहीं, ना पा मान पान, ना पा मनना ते ना पा किसी को देना। फिर कोई किसी ने पूछना, कोई गल की शक है तो पूछ लो, संगो संगो ने, पर प्यो दे बन के रहना, जिम्मेदारियां कटाने गांव उन्हें कटाओ। हाँ हिंदुस्तान के कई हिंदू ने सिखा ने मारे जाने की निखेधी की, करे क्या भी सिख मारे के बहुत माड़ा काम होया। हिंदुस्तान के किंग का ध्यान रखो, हिंदू मारे गए, 10-10 हज़ार रुपया गवर्नमेंट ने उन्होंने दिता है। सिख 200 तो ऊपर मारिया गया, सरकार ने एक भी सिख के पुत्र को ढेला दिता है। फरले वाले बैठा और सरदारा सिंह कोहली पटियाले वाला, इनू भी फड़िया सी, इनू कंसार पिछे छड्या किन्ने दे पिछू, हाँ कि इनू 10.5 महीने रखा, छली राम ने फड़े थे, मेरे नाल शर्ता पर पहला ही चिट्ठियां तो भी पाउंदे रहे गुरबचन में, हुण कहंदे नहीं पाउंदे, पहला नहीं गल है हुक्म लेने को। मेरे को है चिट्ठी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ ये कहना चिट्ठी लिखा देना साढ़े के चौड़ा साहब जी, तलवंडी जी, लौंगोवाल साहब जी, उमरा नंगर जी, सरदार सिंह कोहली पटियाले वाले कहेंगे ना, तो चिट्ठी मेरे को कहते लिखा देना। अर्शपाल सिंह आए थे, चिट्ठी लिया के मैं लिखा दे, मेरे सामने प्लेट में लिया गई नहीं, वो पहला भी है घबरा ना। 13 मार्च को परसों विद्यार्थी वर्ग वालों एक कदम चुकया गया फैडरेशन वालों, तो मेरी एक बेनती है कि यह पढ़ना आप करना गुरुद्वारे में पढ़दा पहले तो किया, पर उस दिन सारे थावां से क्योंकि इस तरह कट्ठ एक तो होंगे, पिंडा पिंडा संगत जुड़ जाती है, तकरीबन सारे गुरुद्वारों से वो इकट्ठे होकर एक थां जुड़ के तो जोड़ा प्रचार सुन के लो पिंडा च जरूर कर दियो। सरकार की कर रही है तो अपने में धक्का की होया, तो जो सरकार के सोले गाँव की कर रहे हैं, ये सारे दस दो पिंडा झामाल तो पिंडा वालों ने क्या की करना, ये भी दस दो।